Good morning, students. So let's start our second lecture of your chemistry. We are doing our first chapter, and today's topics are first is 1.5, that is laws of chemical combination, then Deltals atomic theory, atomic and molecular masses, and last one is molar concept and molar masses. So firstly, start with this laws of chemical combination. So there are basic five laws of chemical combination that govern the chemical combination of elements. Means why we need these laws. Now how the elements react with one another to form various compound, or in which ratio they are reacting, there must be some specific rules. So these five rules give a generalization that how these elements or atoms react with each other to form, or in which ratio they are reacting to form corresponding products or compounds. So here are today here we are going to discuss five basic laws of chemical combination. The first is law of conservation of mass. It is again, this law is very familiar to all. Second is law of definite proportion. Third is law of multiple proportion, Gay Lussac's law, and last one is Avogadro's law. So let's start with our first law, that is लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो ये जो आपने लॉ है बच्चे, लॉ है, ये आप बहुत पहले भी अपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. दैट मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. सो इसमें होता क्या है कि टोटल जो है आपके रिएक्टेंट्स का जो मास है, प्रोडक्ट का मास भी वही टोटल होगा. सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, एज यू कैन सी हियर. 30 किलोग्राम ऑफ log मीन्स लकड़ी का टुकड़ा प्लस 1 kg फायर gives you 28 kg ashes and 3 kg smoke. So here 30 plus 1 is 31 and 28 plus 3 is again 31. Hence mass can neither be created nor be destroyed. This is known as law of conservation of mass. Next move to our second law, that is law of definite proportions. In this law, law of definite proportion, this law is given by a French chemist, that is Joseph Proust. He stated that given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. So atoms combine in whole number ratio, so their proportion by mass will always be the same. Now doesn't matter. अब हम now here I am taking the example of water. अब वाटर हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है. पानी की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, चाहे वो हमारा टैप वाटर हो, चाहे हमारा सी वाटर हो, चाहे हमारा रेन वाटर हो. तीनों के केस में फॉर्मूला जो है इट इज़ H2O. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. ये H2O ही रहेगा, ठीक है. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. This is not going to be changed. So example is here that water is always made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. This is a fixed proportion and definite proportion. For example, the mass of oxygen is 16. Okay, 16. And here are how many hydrogens are 2. So 1 hydrogen का mass 1 होता है, 2 का it is 2. So it is in the ratio 8:1. Understand? So the mass of the oxygen to hydrogen in water is always 8:1. चाहे पानी आपका रेन वाटर हो, चाहे टैप वाटर हो, चाहे सी वाटर हो. एंड कांस्टेंट कंपोजिशन एम्प्लॉयज कांस्टेंट प्रॉपर्टीज. अब अगर कांस्टेंट कंपोजिशन है तो उससे क्या होगा, द प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर ऑल्सो कांस्टेंट. मीन्स वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 0 degree Celsius. So this is your law of definite proportion. Now third one is third law. Move to third law. It is again important one. This is your law of multiple proportions and
you can say it is actually this law is proposed by Dalton, so that is why I have written Dalton's related to Dalton's atomic theory. So this law given by Dalton in 1803, and according to this law, two elements can combine to form more than one compound. The masses of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. Okay, so in your NCRT they have given the example of water and hydrogen peroxide, but I have taken an example of NO and NO2. Okay, so in both the cases इसमें है क्या है कि बोला है कि एक जो हम दो एलिमेंट मान लीजिए कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए. अब देखिए यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है. इट इज़ मेकिंग NO एंड अगेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हेयर दे आर मेकिंग NO2. सो जब टू एलिमेंट जो हैं दे आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं. नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर और भी बहुत से कंपाउंड बनाते हैं. N2O, N2O3, N2O5. ओके, बट होगा क्या दैट द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द, दोनों में से एक एलिमेंट का जो मास है अगर हम फिक्स कर दें, दोनों में से एक एलिमेंट का अगर हम मास फिक्स कर दें, देन the mass of the other is in the ratio of small whole numbers. अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे बच्चे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का मास आपको पता है कितना है, इट इज़ 14, हेयर इट इज़ 16. अब यहाँ पे भी देखिए बेसिकली होता क्या है, जब आप ये ऐसी रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं तो यू शुड फर्स्टली कंफर्म वेदर दे आर बैलेंस्ड और नॉट. तो यहाँ पे इट इज 16, it is 14, it is 16. Okay, and now come to this again 14, 16 and 16. अब देखिए यहाँ पे, अब अगर नाइट्रोजन का 14 है तो ये 16 plus 16 is 32. now अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लूँ, if I will take here example of N, this is your NO2, I will take example of N2O. so इस केस में क्या होगा, डबल है तो it is 28 and oxygen is 16. तो हमें अब देखिए यहाँ पे तो नाइट्रोजन का 14 है, यहाँ पे भी 14 है, बट यहाँ पे जब मैंने एक और मॉलिक्यूल न्यू कंपाउंड लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट इज़ N2O, तो उस केस में नाइट्रोजन जो है इट इज़ 28. तो आपको नाइट्रोजन का ये जो है इसको फिक्स रखना है, मास को फिक्स्ड रखना है. तो उसके लिए कुछ नहीं हमें करना. मान लीजिए अगर ये 14 है, ये 28 के साथ अगर इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक कंसीडर अगर हम जब 14 से इसको 28 करेंगे तो ये डबल होगा, तो सिमिलरली ये भी डबल हो जाएगा 32. समझ रहे हैं. अगर हम अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि मुझे फिक्स करना है नाइट्रोजन का, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, तो यहाँ भी मैं 28 करूँगी तो 14 से 28 होने में डबल हो रहा है, तो इट विल बिकम 64. बट इनकी जो रेशियो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज. और जो आपकी ऑक्सीजन है यहाँ पे 16 है, दूसरे इस केस में आपके पास ये 32 आएगी, ठीक है, और देन इट इज 64. तो ये जब आप देखोगे 1:2:3:4:5, इस तरह से आपका ये जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड हैं, ऑक्सीजन अपनी ऐसे रेशो को जो है इट विल शो इन स्मॉल होल नंबर्स. ठीक है, क्योंकि बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्सीजन से 5 हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, NO, NO2, N2O, N2O3 एंड N2O5. तो इसको आप करके देखिएगा, यू विल फाइंड इट मोर इजी. in your NCERT book they have taken the example of two elements, that is hydrogen and oxygen. So hydrogen oxygen are making compound water as well as hydrogen peroxide, but in case of hydrogen peroxide the H2O2 and water H2O. So in H2O it is 2 grams of hydrogen and oxygen is 16. Second case में 2 gram of hydrogen and oxygen is 32. ओके, सो इन दिस वे. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या रेशो आ गया, 16
इन केस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन किसकी रेशो में है, हाइड्रोजन की तो फिक्स है 2:2, अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इट इज़ इन द रेशो 16:32, दैट इज 1:2। सो इसमें कंडीशन क्या है कि एक आपको फिक्स्ड रखना है मास एलिमेंट का और दूसरे की जो रेशियो होगी फिर वो स्मॉल होल नंबर्स होगी, अंडरस्टैंड। सो दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल proportions. Next move to our next law, that is Gay-Lussac's law of gases volume. Now this law is given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. अब यहाँ पे क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास ये जब हम कंबाइन करते हैं गैसेस को, ओनली गैसेस की बात यहाँ पे हो रही है, ये हम लिक्विड के ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई नहीं कर सकते बच्चे, तो दिस लॉ एक्सक्लूसिवली applies to the gases. So when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided that gases are at same temperature and pressure or other remaining physical quantities are constant or remains same. So to understand this, I have taken here example that hydrogen and oxygen, 100 ml of hydrogen gas react with 50 ml of oxygen gas and you will get 100 ml of water. अब ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे 100 वॉल्यूम ही बनेगा, यहाँ पे 150 क्यों नहीं बन गया? तो मैंने जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में बच्चे बताया था, you have to balance the reaction. So as you can see here, this reaction is balanced here. Okay, this reaction is balanced here. This is your 50 oxygen. तो ये पूरा उन्होंने रिएक्शंस को करके बताया हुआ है इसमें. सो व्हाट एक्चुअली हैपन हियर, 2 हाइड्रोजन, अब मान लीजिए यहाँ पे कहा है इट इज 100 ml, इट इज 100 ml. अब वाटर हमें गिवन है, ये हमने खुद नहीं कहा, इट इज गिवन दैट इट इज 50, अगर नाम ही दिया, ठीक है, तो 100 इक्वल्स टू 2 वॉल्यूम, यही है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, देख रहे हो ना आप, जब मैंने बैलेंस किया है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स हेयर इज 1 एंड हेयर इज अगेन 2. सो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स 2, 1 का हाफ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 50, और यहाँ पे जाके फिर 2 है, मीन्स 100 अगेन. सो व्हेन 100 ml of hydrogen combines with 50 ml of oxygen, you will get 100 ml of water. Thus the volume of hydrogen and oxygen which combine together bear a simple ratio, that is 2:1. I hope you clear with this law again. Now move to next law, Avogadro's hypothesis, or you can say Avogadro's law. Now this law states that equal volumes of different gases at the same temperature and pressure have the same number of moles. आपका सेम जो फिजिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, मींस टेम्परेचर प्रेशर अगर आपका सेम होगा तो इक्वल डिफरेंट गैसेस के जो इक्वल वॉल्यूम होंगे, इक्वल वॉल्यूम के अंदर वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग. For example, if I have this container, okay, this is a container and it has hydrogen gas, and how much? It is 100 ml. Now, and let it has x number of molecules. कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें? x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली अब ये कंटेनर है, इसका 100 ml वॉल्यूम हो गया हाइड्रोजन गैस का. अब हमारी कंडीशन जो है टेम्परेचर और प्रेशर की, दे आर सेम. तो अगर मैं इसमें क्लोरीन गैस को भी डालना चाहूँ इस कंटेनर में, जब मैं क्लोरीन गैस को ऐड करूँगी अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, 100 ml, क्योंकि कंटेनर की कैपेसिटी ही उतनी है, 100 ml की कैपेसिटी है. ओके, सो इट इज़
100 ml अगेन, कंटेनर की भी कैपेसिटी यहाँ पे 100 ml है. सो व्हेन आई विल ऐड हेयर 100 ml ऑफ क्लोरीन गैस, अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोरीन गैस के कितने होंगे, यस x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेन. बट अब इसको थोड़ा हम समझते हैं किसी और तरीके से. इफ देयर आर 50 ml ऑफ वॉल्यूम, अब अगर हमारा 50 ml हो जाए, यहाँ पे पहले 100 ml में x मॉलिक्यूल थे तो 50 ml में कितने हो जाएंगे, x/2. सो वी कैन से हेयर दैट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जितना इफेक्ट आपका वॉल्यूम पे होगा उतना ही इफेक्ट आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे होगा. बट कंडीशन इज अगेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स सेम, इट विल नॉट चेंज. उनकी वो ये कंडीशंस हमें चेंज नहीं करनी है. ओके अगर मैं कहूँ दैट इन 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर आर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है 200, मीन्स आई हैव डबल्ड इट, आई हैव डबल द वॉल्यूम. सो व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, येस दे आल्सो बी डबल, 2x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज एग्जाम्पल गिवन हियर. नेक्स्ट इज ये वही उसके बारे में जो मैंने आपको पीछे बताया बच्चे. सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स. होता क्या है, रिएक्शन आपको पता है, इट इज H2 प्लस O2, you will get water, that is H2O. Here we have to write 2 and here we have to write again 2 to balance this equation. So 2 volume of hydrogen, 1 volume of oxygen, and you will get 2 volume of water vapors. Next is very important one, that is Dalton's atomic theory. अब हम इस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो. सो इन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1808 Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the main 5 points, and these key points are known as Dalton's atomic theory. So let us discuss one by one. The first is all elements are made up of atoms, indivisible atom. He said that matters are consist of individual atoms. Second is atoms can neither be created nor be destroyed. Third is atom of the same element are identical, they have the same mass and chemical property. अब एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल. अब मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसके हर एक एटम का जो मास है वो सेम ही होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट. अब अगर हमारे पास एक एटम ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, ऑब्वियसली मासेस भी डिफरेंट होंगे, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अगेन डिफरेंट. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ different elements combine to form a compound, and the number of various atoms combined were a simple whole number ratio to each other. अब जब एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं टू मेक अ न्यू कंपाउंड, द रेशो दे वियर इज अ वेरी सिंपल whole number ratio. Next we do here atomic masses and molecular masses. So the next topic is atomic masses and molecular masses. So what atomic mass, इसके बारे में बच्चे आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. So one atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12th atom, and it is represented by one atomic mass unit, that is 1.66 into 10 raised to the power 24 grams. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, इससे पहले ज़रा यहाँ पे कार्बन 12 की बात हो रही है. सो ये कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. आपको पता बच्चे कार्बन है आपके पास, ठीक है, इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. तो वो हैं कैसे, ये मान लीजिए इसकी ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे बच्चे प्रोटॉन्स हैं 6, न्यूट्रॉन्स भी हैं 6. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इलेक्ट्रॉन्स आपके शेल्स में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके शेल्स में है. दिस इज योर फर्स्ट शेल, दिस इज योर सेकेंड शेल. तो अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकेंड 4, 1 2 3 एंड 4. अब जब हम मास की बात करते हैं किसी भी वन एटम ऑफ कार्बन एटम का, अगर हम बात करें कि वन कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे इन तीनों के सब एटॉमिक को हम प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बट बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्यों? प्रोटॉन का मास बच्चे होता है इसी के अकॉर्डिंग, अराउंड दिस वन, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. न्यूट्रॉन का भी लगभग अराउंड इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन है, बट जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास बहुत कम होता है, इट इज़ अबाउट 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स. तो ये इतना प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं व्हेन वी काउंट फॉर मास ऑफ एन एटम. सो इट इज़, सो दैट इज़ वाई 1 AMU जो है, ये मतलब आपको क्लियर हो गया कि व्हेन वी काउंट द मास ऑफ एनी, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन जो है हमने उनको कंसीडर नहीं किया, तो 6 + 6 12. ओके, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/12 ऑफ दिस. अब अगर हम बोले 12 कार्बन, अब 12 टोटल तो 12 एटम्स है ना, तो 12 एटम्स का क्या होगा, दैट इज 12/12 into this. So in this way we have calculated one atomic mass unit, that is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 grams. Now with the help of this, here we have mass of an atom of hydrogen. अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है. ओके, अब हमें इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इसका मास फाइंड आउट करना है, किसका, हाइड्रोजन का. तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1 AMU यूनिट, तो दोनों को व्हेन वी डिवाइड इट, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ वन एटॉमिक यूनिट. नाउअडेज AMU जो है आपका एटॉमिक मास यूनिट, इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं बच्चे U. It is replaced by U, which is known as unified mass. Understand? Next topic is एवरेज एटॉमिक मास. अब एवरेज एटॉमिक मास की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, अब देखिए जैसे कार्बन है आपके पास, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. तो जब हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों का अलग अलग अपना एक 12 है, दूसरे का 13 मास है, तीसरे का 14 है, तो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे करेंगे, तो डिपेंड करता है कि हाउ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज दे आर मिक्स्ड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव टेकन हियर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक. सो कार्बन 12 हेयर इज 99%, ठीक है, एंड 13 इज 0.8 एंड कार्बन 14 इज 0.2, टोटल इज 100%. सो हम क्या करेंगे, ये दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. तो हमने क्या किया, 12 कार्बन 12 लिया, 12 इंटू, अब 99 की जगह दे हैव रिटन 0.99, तो उसका क्या किया, 99 डिवाइडेड बाय परसेंटेज में है, सो इट इज 99/100, दैट इज 0.99. सिमिलरली हेयर दैट इज 0.8%. तो 0.8% में जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, यू विल गेट 0.008. Understand? So similarly for 2.2%. So when we multiply and add these, you will get 12.012 atomic mass unit. So this is the average atomic mass of carbon. Next is, so average atomic masses for other elements can be calculated. You can calculate them with the help of, by taking help of periodic table of elements. The atomic mass is mentioned for different elements actually represented their average atomic mass. अब जो आपके periodic table में वो points में given होते हैं ना mass, so that are actually the average atomic masses.
So next move to next topic, interesting one, that is relative molecular mass, and it is very easy one topic. आपने इसको पहले भी सॉल्व किया है. टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मासेस, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आई हैव रिटन हियर हाउ यू कैन, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं 10 तक भी बच्चे दे डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास. सो आई हैव मेड हियर 5 सिंपल स्टेप्स, क्योंकि ये बेसिक हैं. अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट इज डिटर्मिन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है. सेकेंड, डिटर्मिन द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है और कितने कितने एटम प्रेजेंट है. पीरियोडिक टेबल यूज करना है टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट विद द एटॉमिक मास. अब मान लीजिए हमारे पास अगर एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो अगर किसी कंपाउंड में वो 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसको 16 थोड़ा ना लिखेंगे, वी विल राइट 3 into 16. And final step is add the all the values, you will get the relative molecular mass. So here are example of ammonia and ammonium sulfate. So in case of ammonia, सबसे पहले आपको उसका molecular formula पता होना चाहिए, that is NH4. क्योंकि कई बार example ने they will simply write ammonia, they will simply write ammonium sulfate. So you should know the formulas, molecular formula. So NH3, we know that here 1 nitrogen, so 1 into 14 mass of nitrogen, and mass of hydrogen is again 1. How many hydrogens are there? 3 into 1, that is 3, so total is 17 units. Similarly for ammonium sulfate, formula is NH4 sulfate. I hope you all know how to find out this formulas. Like here is ammonium sulfate, so आपको पता है बच्चे, ammonium is NH4, it is actually cation NH4, sulfate SO4 2 negative, it is SO4 2 negative. So when we write the chemical formula here, आपको पता है ये वैलेंसीज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं. सो NH4 becomes here twice and SO4 as it is. I hope you know how to write the molecular formula. You have studied in 9th class. If no, then please practice them. So nitrogen, here 2 molecules. आप देखिए यहाँ पे 2, आपने ये नहीं सोचना here is 1, here 2 molecules of nitrogen are there. 1, देखने में आपको बच्चे 1 ही लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2. और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 into 2 8, सल्फर अगेन 1 एंड ऑक्सीजन आर 4. सो इन दिस वे वी विल फाइंड हियर द मोलिकुलर masses, relative molecular masses. So another example is calculate the molecular mass. I have taken this example as this is given in your NCERT book as a exam problem question. Example में given है, that is problem number 1.1. Calculate the molecular mass of glucose. Okay, so हमें यहाँ पे ग्लूकोज का molecular mass जो है वो find out करना है, that is C6H12O6. So here are 6 carbons, hydrogens are 12, oxygen are 6. तो अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला ही नहीं आता होगा, you can't calculate the molecular mass. तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ जाता है कई बार कि we will just write down the name of the compound that find out the molecular mass. तो अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला ही, molecular फॉर्मूला ही नहीं पता है, you can't calculate. So please practice these chemical formulas. So carbon here, mass of 1 carbon is 12 and number of carbon are 6. They have taken here average, relative average atomic masses. अगर आप एवरेज नहीं लेते हो, सिंपल होल नंबर में लेते हो, 12 ले लिया, 1 ले लिया, ऑक्सीजन का हमने 16 ले लिया, देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको पॉइंट्स में याद रखना है, नो वे. आप सिंपल होल नंबर रेशियो में भी इसको लर्न रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास जो है इट इज़ जस्ट लाइक मोलिकुलर मास, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जो है हम सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड. यहाँ पे बच्चे आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। तो जब हम उसका मोलिकुलर निकालेंगे मास तो उसको हम फॉर्मूला मास बोलेंगे। तो आई हैव टेकन हियर एग्जांपल ऑफ Fe2SO4 3। सो the method is exactly same how you find out the formula mass. As you can see here, 2 into this is your mass of iron, then sulfur plus this is oxygen, and 3 written here. So in this way you can calculate the formula mass. Means there is no difference between basic method दोनों का सेम है मोलिकुलर मास का और फॉर्मूला मास का, बट उसमें जो है आपका फॉर्मूला मास इट इज़ यूज टू कैलकुलेट फॉर द आयनिक कंपाउंड्स. Next is mole concept and molar mass. Now, mole concept and molar mass. So 1 mole is the amount of substance that contain as many particle or entities as there are atom in exactly 12 gram of the कार्बन 12 आइसोटोप. ये बच्चे आपने मोल कॉन्सेप्ट 9th क्लास में किया है, वही है ये, नथिंग इज डिफरेंट. सो एवोगैड्रोज 1 मोल इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na. So no many entities like atom, molecule or other particles constitute 1 mole of a particular substance. So we say that 1 mole of hydrogen atom, so 1 mole में कितने atoms होते हैं, it is equal to Avogadro's constant, that is 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. तो ये नंबर आपको याद रखना है. So number of particles से अगर हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चे मोल्स ऑफ द पार्टिकल या हाउ मेनी मोल्स आर देयर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, देयर इज डिवाइड. अगर हमें मोल्स से number of particles निकालने हैं then we have to multiply with Avogadro constant number, that is 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. I am not going to discuss here in detail how we calculate it, how it comes. वो आपने जो 9th में watermelon वाला पढ़ा है ना, ये वही है. This is the 1 mole concept and molar mass. Okay, let's move to next slide. So there is a relationship between the mole, Avogadro's number and mass is summarized as follow. यहाँ पे देखिए 1 mole of any particle, चाहे एटम है, मोलिक्यूल है, आयन है, it is equal to this number of molecules और आयन, और ये क्या है Avogadro number, and this is equal to relative mass of those particles in gram. देखिए कैसे एक दूसरे से इंटरलेटेड है. 1 mole is equal to Avogadro's number and this is equal to relative mass in grams, और 1 mole of molecule is equal to this number of molecule equal to molecular mass in gram. यहाँ पर रिलेटिव मास अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, मोलिक्यूल्स होल की, और यहाँ पे मोलिकुलर मास 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू दिस नंबर ऑफ एटम एंड एटॉमिक मास इन ग्राम. तो ये तीनों ही चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं. अगर आपने ये रिलेशन याद रखे, यू कैन इजली सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो मोल कन्वर्जन डायग्राम, जब हमने बच्चे पार्टिकल्स, दे में बी एटम, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, जब हमने पार्टिकल्स से मोल्स की तरफ जाना है, मीन्स हमें पार्टिकल्स पता है कितने हैं, हमें उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, बी विल 1 mole equal to that is divided by your number of Avogadro's number, और इस केस में मोल से जो पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली मास, ठीक है. सो जब हम मास से मोल में जा रहे हैं 1 मोल इक्वल मोलर मास, और जब हम मोल से मास में जा रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है. सिमिलरली फॉर द वॉल्यूम. In next lecture we will discuss the numerical problems. Now this is your last slide. Some work for you here. You have to solve these back exercise NCERT problems in your separate chemistry notebook. Just go through these problems, and if you find any difficulty you can text me. Okay, so thank you students, happy learning.